Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today is our 5th lecture. So, as we were studying the relationship of pixels, so in today's lecture we will also continue the same topic, and we will have some more discussion about some relationships and some other arithmetic operations. But before going into that, we have to summarize the previous lecture so that we can build upon it, and we can continue from the previous steps that we have covered. So what we have studied in the last lecture, we said that what are the connectivity of pixels. If some pixel lies in some specific location, then how they are connected, and what are their neighbors. How do we say that these belongs to our neighbors, and then we discuss different kind of neighbors. There were some diagonal neighbors, and some were adjacent horizontally and vertically. Then after that we also studied that what is adjacency, so how we say that something is adjacent to another one. And there were different types, because we have different types of connectivity, and connectivity we define it with the neighbors. So that's why there were also different kind of adjacency. So how to adjacent, how do we define that, that there are different adjacents. And then we also said that if we can define something that they are connected or they are adjacent, how do we recognize it? If there are 2 objects or 3 objects in one image, then how can we recognize it? For that we need to say, or we need to learn that we need to have some labels associated with that objects. For that we learn then again one algorithm, that how to define or how to give labels to some objects. So we learned this algorithm, and then we said that this algorithm is component labeling algorithm, and we had some examples related to that. So what we will learn today in lecture, what are different distance measures, that how do we measure the distances between different objects or different pixels, and then what is the application, why do we need to learn this distance measure, like what are the applications of it, how do we use it, what are the benefits of it. So we will have some examples related to that, and then also what are the arithmetic and logic operations on image. So what how can we have addition of different pixels, or how do we subtract pixels, what it means, because if something is in matrix, then we can have some arithmetic operation, and we can also have some logical operation, and or and XOR, and these kind of operation we can perform. And then we will also learn what are the neighborhood operations, or if we have neighborhoods of pixels, then what kind of operations we can perform on it. So into detail, before that we have to build a little bit of basis from the previous lecture, and then we will continue the same thing. So as we studied that if we want to have some segment, and we want to find out the connection between it, then how we can define it, that we take a subset of S of an image I. So we have an image, and we take a subset of it, so which is P and Q. So we take 2 points P and Q which belong to this subset S of image I. So these two subsets, this subset has 2 points, which is P and Q. Then P is connected to Q in S, which means if there exists a path from P to Q consisting earlierly
of pixels in S. For any such P belong to S, the set of pixels in S that are connected to P is called a connected component of S. अब अगर आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि अगर हम कोई सबसेट लेते हैं, कोई एक एरिया ले लेते हैं और हम ये कहते हैं कि उसके अंदर कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं हम ले लें और उनका आपस में कोई कनेक्शन हो, तो हम ये कहेंगे कि ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं. अगर आपको याद है हमने एक ड्रा किया था, एक सेट हमने लिया था S और हम ये कह रहे थे कि ये एक सबसेट है जो कि हमारे इमेज के अंदर आ रहा है. ठीक है, ये एक इमेज का हमारा एरिया है और उसमें हमने कोई P ले लिया और एक दूसरा वैल्यू Q ले ली. तो अगर इनके दरमियान कोई पाथ बन रहा है तो हम ये कहते हैं कि ये आपस में कनेक्टेड कंपोनेंट हैं. और अगर इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड है, इनका कोई पाथ बन रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये सारा एक कंपोनेंट है और हम इसको एक कंपोनेंट के तौर पर लेते हैं. तो सेम यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया है मैथमेटिकली. तो बेसिकली ये कनेक्टेड कंपोनेंट हैं. अब इसको हम कैसे आगे लेकर जाते हैं? टू एक्सट्रैक्टिंग द रीजन प्रॉपर्टी वी नीड टू डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट्स. अब ये हमें पता है कि अगर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ निकालनी है कि इस शेप का साइज़ क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, तो हमें इसको अलग करना होगा इस दूसरे से. क्योंकि अगर सबका एक ही लेबल होगा या वन फॉर एग्जांपल हम सबको असाइन कर रहे हैं, तो वन जब हम रीड करेंगे इसको 0 और 1 की फॉर्म में, अगर बाइनरी इमेज है तो 1 जहाँ भी होगा हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहें कि कितने पिक्सल्स हैं या उसकी लेंथ क्या है एक्स एक्सिस में, तो वो बाकी सारे भी आ जाएंगे. तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, इसको अलग से आइडेंटिफिकेशन देनी होगी. फॉर द आइडेंटिफिकेशन और ग्रुप आइडेंटिफिकेशन वी नीड टू आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ पिक्सल विच आर कनेक्टेड belonging to a particular group, assign a particular identification number. अब हम क्या करते हैं, इसको हमें एक ख़ास नंबर देना होगा आइडेंटिफिकेशन का. तो उस आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए हम एल्गोरिथम पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई कंपोनेंट असाइनमेंट की कोई एल्गोरिथम होना चाहिए. सो वंस वी आइडेंटिफाई ग्रुप of pixel which belongs to a particular region, then we can go for finding out some region properties. अब हमें ये पता है कि अगर हम एक रीजन आइडेंटिफाई कर लें कि ये एक अलग रीजन है और ये बाकी जो हैं ये अलग हैं, तो हम उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं. और वो प्रॉपर्टीज़ हम शेप की देख सकते हैं, हम एरिया की देख सकते हैं, बाउंड्री लेंथ वाइज और सम अदर फीचर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अब ये तो हमें पता चल गया कि लेबलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है. अब वो लेबलिंग हम करेंगे कैसे, उसका बेसिक तरीका क्या है कि अगर हमारे पास इमेज है तो हम इमेज को स्टार्ट करते हैं एक डायरेक्शन से, x0 और y0 से. मतलब ये कि हम इस एक पिक्सल से स्टार्ट करते हैं और हम रीड करना शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम, हर एक लोकेशन तक पहुंचते हैं. तो अब उस तक पहुंचने के लिए अगर हम इस P को कुछ असाइन करना चाह रहे हैं, ये हम उस लेवल पे आ गए हैं, तो इस P को हमने असाइन करना है लेबल. तो लेबल असाइन करने से पहले अब हमने कुछ चीज़ों को नोट करना होगा और उसकी नाइबर की इंफॉर्मेशन होगी. तो नाइबर की इंफॉर्मेशन अगर हम नोट कर रहे हैं और उसको वेरिएबल R के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो दूसरा वेरिएबल है या नाइबर है उसका लेफ़्ट पे तो वो T आ रहा है. तो इन दो को हम चेक करेंगे और हम एज्यूम करते हैं फॉर कनेक्टिविटी कि हम फॉर कनेक्टिविटी या नाइबर्स जो हैं उसके वो चेक कर रहे हैं. अब इस सिचुएशन में जब हम रीड करते जाएंगे तो ज़ाहिर है आर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले आ रही है, तो उस आर की इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करते जाएंगे. क्योंकि ये वेरिएबल है तो हम अपने पास स्टोर करेंगे और टी जो है वो भी हम नोट करेंगे और फिर हम पी को लेबल असाइन करते हैं. तो जब लेबल असाइन करेंगे तो उससे पहले हमें इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करना होगा. स्कैन एन इमेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. Assume for connectivity P be a pixel at any step in the scanning process before P point R and T are scanned. So
This is the basic step, and for that reason we call it component leveling assignment algorithm. ठीक है, हम इसको component leveling कहते हैं क्योंकि हम एक एक लेवल पे जा रहे होते हैं. अब एल्गोरिथम किस तरह काम करेगा? हम लेते हैं IP जो पिक्सल वैल्यू एट पोजीशन P. I क्या है? उसकी एक इंटेंसिटी वैल्यू है P की. तो हम इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं P की, और वो P क्या है? पिक्सल वैल्यू एट पोजीशन P. वो पोजीशन P एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है हम, तो जाहिर है वो P जो है वो किसी एक लोकेशन पे होगा. X और Y की कोई लोकेशन होगी, तो वो जो भी लोकेशन होगी उसकी हम इंटेंसिटी ले रहे हैं. तो वो इंटेंसिटी को हम लेबल असाइन करेंगे, LP लेबल असाइनमेंट टू अ पिक्सल लोकेशन P. तो वो असाइनमेंट कैसे होगी? इफ IP इज इक्वल टू 0, अगर जो इंटेंसिटी वैल्यू 0 है P की, तो मूव टू नेक्स्ट स्कैनिंग पोजीशन. तो हम नेक्स्ट स्कैनिंग पोजीशन पे चले जाते हैं. और ये हम कर रहे हैं बाइनरी इमेज को. मतलब ये कि जब हम बाइनरी इमेज चेक उसको लेबल असाइन करेंगे तो हम उस सिचुएशन में होंगे. जब हम ग्रे स्केल में होंगे उसके लिए इन्हीं वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करना होगा. और सेम इसी तरह कलर के लिए हमें RGB की वैल्यूज़ चेक करनी होती हैं. लेकिन क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अब यहाँ से आगे हम बिल्ड करेंगे इसके ऊपर. तो बिल्ड का मतलब ये होगा कि हम जब बेसिक को देख लेंगे तो अब इसमें चेंजेस करना बड़ा आसान हो जाएगा. कि अगर हमने RGB में करना है तो RGB में बजाय इसके कि हम 0 चेक करेंगे, हम बाकी वैल्यूज़ चेक करते जाएंगे. एनी हाउ, अब अगर 0 है तो 0 का मतलब ये कि ये फोरग्राउंड है या बैकग्राउंड है, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. इफ़ इंटेंसिटी P इज़ इक्वल टू 1, अगर तो P की इंटेंसिटी 1 है एंड IR intensity of R and intensity of T is also 0, तो अगर तो P की वैल्यू 1 आ रही है और R और T की वैल्यू 0 है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे? देन असाइन अ न्यू लेवल टू अ पोजीशन P. तो हम जिस P लोकेशन पे हैं उसको हम नई लेबल असाइन कर लेते हैं, और उसको हम नया लेवल जो भी होगा वो फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम 1 असाइन करेंगे. अगर तो R और T 0 हैं और 1 हमने पहले असाइन किया हुआ है तो इसके बाद हम 2 असाइन करेंगे. इसी तरह कंटिन्यू हम चलते जाएंगे. अब दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है? इफ इंटेंसिटी ऑफ P इज इक्वल टू 1 एंड ओनली वन ऑफ द टू नेबर इज 1. अब अगर P की जो इंटेंसिटी है वो 1 आ रही है और जो नाइबर्स उसके आ रहे हैं जो R और T हैं उनमें से कोई एक 1 है, तो देन असाइन इट्स लेबल टू P. तो जिसकी T की अगर असाइनमेंट लेबल 1 है तो हम वो P को असाइन कर देंगे. अगर तो R की असाइनमेंट है, उसको लेबल असाइन हुआ है 1, तो हम उसको P को भी 1 कर देंगे. तो मतलब ये कि हम वो वाला लेबल असाइन कर लेते हैं. देन असाइन इट्स लेबल टू P. अब हम लेबल जो हैं वो असाइन करते हैं P को. इफ़ इंटेंसिटी P इज़ इक्वल टू 1, अगर तो हमारे पास P की इंटेंसिटी 1 आ रही है एंड बोथ R एंड T आर 1s. और अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई कि अब R और T की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे पास 1 आ रही हैं. इफ़ लेवल R इज़ इक्वल टू लेवल ऑफ T, तो अगर लेबल हमने जो असाइन किया हुआ है R को वो लेबल ऑफ T के इक्विवेलेंट है, देन लेबल P इज़ इक्वल टू लेबल R. तो हम क्या करेंगे कि जो P को हमने लेबल असाइन करना है वो लेबल R वाला असाइन कर देते हैं. अगर ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो हम P को वो वाला लेबल असाइन करेंगे जो R का होगा. तो इसका मतलब है कि वो T का भी वही वाला लेबल होगा. इफ़ लेबल R इज़ नॉट इक्वल टू लेबल T, अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि अगर R और T में डिफरेंस है, एक की लेबल 1 आ रहा है और दूसरे की 2 आ रहा है, तो अब हम उस सिचुएशन में P को क्या असाइन करेंगे? देन असाइन वन ऑफ द लेबल्स टू P एंड मेक अ नोट दैट द टू लेबल्स आर इक्विवेलेंट. और अब हम ये करते हैं कि P को कोई एक असाइन कर देते हैं लेबल,
और हम ये नोट लगा लेते हैं साथ में कि यहाँ पर एक इशू आ गया था कि ये जो दोनों थे आपस में मैच नहीं कर रहे थे और इनको आपस में मैच करना चाहिए था, इस वजह से कि शायद ये जो नाइबर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं और इस वजह से लेबल तो डिफरेंट आ रहा है इनका। तो बाद में हम नोट लगा लेते हैं कि ये शायद एक हो, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये इस वजह से हमें सिर्फ यहाँ पर एहतियात करनी होगी कि जब भी दोनों अलग अलग आएंगे तो दोनों अलग आने की सिचुएशन में हम कोई एक असाइन कर देते हैं पी को और नोट लगा लेते हैं, और बाद में सेकेंड राउंड में हम क्या करते हैं उसको लेवल कर लेते हैं, मतलब वो जो हमने नोट लगाए थे उनको चेक करते हैं। एट द एंड ऑफ द स्कैन ऑल पिक्सल विद वैल्यू 1 आर लेबल। अब जहाँ पर 1 है हमने सबको लेबल कर दिया। 1 का मतलब ये कि इंटेंसिटी, जो पिक्सल की इंटेंसिटी है वो 1 है, तो हमने उन पिक्सल्स को लेबल लगा दिए। लेबल तो अब मल्टीपल हो सकते हैं। सम लेबल्स आर इक्विवेलेंट। अब जो हमने नोट लगाया था तो उसमें हमने ये देखा कि आर और टी का जो इशू आ रहा था तो वो हमने नोट कर लिया था। तो ड्यूरिंग सेकेंड पास प्रोसेस इक्विवेलेंट पेयर्स टू फॉर्म इक्विवेलेंस क्लास। अब जो सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, सेम पेयर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक ही क्लास से या एक ही रीजन से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो हम उनको एक लेबल असाइन कर देते हैं। असाइन अ डिफरेंट लेबल टू ईच क्लास इन द सेकेंड पास थ्रू द इमेज, रिप्लेस ईच लेबल बाय लेबल असाइन टू इट्स इक्विवेलेंट क्लास। और हम करते ये हैं कि जो उसके इक्विवेलेंट क्लासेस हैं हम उनको लेबल असाइन कर लेते हैं। मतलब ये कि वहाँ पर अब हम इस चेंजेस को एलिमिनेट कर देते हैं और सबको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर हमारे पास ये एक रीजन है और यहाँ पर हमारे पास दूसरा रीजन आ रहा है तो हम इनको कैसे लेबल असाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है कि क्योंकि आर और टी की जो वैल्यू है वो 0 है, इस वजह से हम इसको 1 असाइन कर लेते हैं। सेम इसी तरह हम आगे चलते गए और हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ पर 1 है क्योंकि आर और टी की वैल्यू हमारे पास 0 है। यहाँ पर 2 है क्योंकि आर और टी की वैल्यू 0 है। तो सेम इस रो में हमारे पास और कुछ भी नहीं था। तो हम नेक्स्ट रो पे जब आए तो यहाँ पर 1 और 0 है। तो हमने ये एक स्टेप में पढ़ा था कि अगर कोई एक आर में और टी में सेम होगा 1 होगा तो हम वो वाला 1 असाइन कर देंगे, वो वाला लेबल असाइन करेंगे जो इन दोनों में से कोई एक को के पास होगा। तो क्योंकि इंटेंसिटी वैल्यू यहाँ पर 1 थी आर की और टी की वैल्यू 0 है, तो आर को जो लेबल असाइन हुआ है वो हम पी को भी असाइन कर देते हैं। यहाँ जो हमने ये देखा था, इफ़ intensity P is equal to 1 and only one of the two neighbors is 1, अगर इन दोनों में से किसी एक का 1 है neighbors में R और P का, तो हम P को क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं वो वाली वैल्यू जो जिसका 1 है। तो 1 वैल्यू नहीं, उसकी इंटेंसिटी। तो क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी R की 1 है तो हम इस वजह से लेबल वो असाइन करेंगे। अब क्योंकि R को लेबल 1 असाइन हुआ था इस वजह से हम इसको भी 1 असाइन कर देते हैं। अब सेम इसी तरह हम 2, यहाँ पर 2 इस वजह से असाइन करते हैं कि R की वैल्यू, R का जो लेबल है वो 2 है, तो हम यहाँ भी 2 कर देते हैं। सेम इसी तरह हम आगे जाते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है R और T की, तो इस वजह से हम इसको 3 असाइन कर, न्यू लेबल। जब हम यहाँ आते हैं सेम वो वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ये हमने कर दिया। यहाँ पर 1 क्यों असाइन किया, क्योंकि T की वैल्यू, T की जो इंटेंसिटी है वो 1 है और लेबल असाइन जो हुआ है वो भी 1 है, तो इस वजह से हमने भी यहाँ पर 1 असाइन कर दिया। सेम यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1। लेकिन यहाँ एक इशू आ रहा है, यहाँ ये इशू आ रहा है कि 2 और 1 जो हैं ये आपस में मिसमैच कर रहे हैं। और हमने यहाँ कहा था कि अगर तो हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि इफ़ लेबल R इज़ नॉट इक्वल टू लेबल T, तो अगर लेबल जो है R को और T को जो असाइन हुए वो सेम नहीं है, लेकिन जो इंटेंसिटी वैल्यू है P की वो भी 1 है और जो बोथ R और T जो हैं वो भी 1 है,
तो उस सिचुएशन में इंटेंसिटी वैल्यू अगर 1 है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लेबल को देखते हैं। तो लेबल अगर 1 सेम नहीं आ रहे तो इस वजह से हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं उस बात को। तो सेम यहाँ पर अब हमें ये पता है कि इसकी इंटेंसिटी वैल्यू क्या है 1 और इसकी इंटेंसिटी वैल्यू भी 1 है। लेबल दोनों के अलग अलग हैं। इस वजह से अब हमने क्या किया कि कोई एक लेबल असाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने ठीक है जो लेबल था वो असाइन कर दिया। तो अब इस सिचुएशन में हम नोट लगा लेते हैं कि ये जो, क्योंकि ये भी इंटेंसिटी वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो ये तो दरमियान में पाथ बना रहा है, तो ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो कनेक्ट हो रहे हैं तो लेबल फिर क्यों डिफरेंट हैं, लेकिन वो डिफरेंट इस वजह से आ रहे हैं कि वो स्टार्ट में असाइन हो चुका था, जो पहले राउंड में हम जब चल रहे हैं तो जाहिर है वो असाइन हो गए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दूसरा राउंड लगाना पड़ेगा, दूसरा पास से गुजरना पड़ेगा। तो सेम अब यहाँ पर भी हम नया लेवल असाइन करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी वैल्यू जो है आर की और टी की वो 0 है, तो हम नया लेवल असाइन करते हैं। यहाँ पर हम 4 लेते हैं, लेकिन ये 4 कैसे असाइन हुआ, 3 की इंटेंसिटी वैल्यू इस आर की, यहाँ पर आर आएगा क्योंकि, तो आर की इंटेंसिटी वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी टी की इंटेंसिटी वैल्यू 1 है, लेकिन लेबल डिफरेंट हैं। तो हमने लेबल में से किसी एक लेबल को साइन कर दिया यहाँ पर और नोट लगा दिया कि ये जो दो हैं ये सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि नाइबर्स अगर आप देखें इस पी का 2 नाइबर्स जो बन रहे हैं वो बहुत करीब करीब हैं साथ में, और दोनों जो हैं इसके दरमियान कोई खाली जगह नहीं है, कोई पिक्सल नहीं है, तो ये इनको लॉजिकली एक ही होना चाहिए था। इस वजह से हम ये लेबल लगा लेते हैं कि अब ये बाद में जब हम दोबारा आएंगे तो इसको एक क्लास असाइन कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी ये इशू आ रहा है कि इसकी इंटेंसिटी वैल्यू 1 है, इसकी इंटेंसिटी वैल्यू 1 है, लेकिन और इसकी इंटेंसिटी वैल्यू भी 1 है, लेकिन लेबल जो इन दोनों के हैं वो डिफरेंट है। इस वजह से हम कोई एक असाइन करते हैं। हमने 4 असाइन कर दिया और इसका भी नोट लगा दिया, तो वो हमारे पास सेम ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, 3.4। और इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि हमारे पास इन दोनों में से कोई एक लेबल असाइन है तो हम वो लेबल असाइन कर सकते हैं। यानी हाँ, चलते गए हम आगे, और जब हम यहाँ पर आए तो हमने इसको 5 असाइन किया, और वजह क्या थी कि इन दोनों की इंटेंसिटी वैल्यू 0 है, तो हमने नया असाइनमेंट कर दिया। अब यहाँ पर हमने 1 असाइन किया। क्यों असाइन किया, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी वैल्यू 1 है और इसकी इंटेंसिटी वैल्यू भी 1 है, लेकिन लेबल डिफरेंट है, ये 1 है और ये 5 है। अब इस सिचुएशन में कोई एक हमने असाइन कर दिया और नोट लगा दिया यहाँ पर कि ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। तो सेम हम आगे चलते गए और हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो एट द एंड हमारे पास ये इशू आ गया कि ये जो 1 और 2 का जो सेकंड पास था इसको हम क्लियर करते हैं। अब सेकंड को हम जब क्लियर करते हैं तो हमने कोई एक लेबल असाइन करना है एक क्लास को। तो यहाँ जब हम आए तो वो जो इश्यूज थे जो हम नोट किए थे ये वाले, हमने इसको डिज़ोल्व कर दिया और इसको हमने 3 असाइन कर दिया। तो ये सिंपल हमारे पास एल्गोरिथम है कि हम लेबल कैसे असाइन करते हैं। अब हम डिस्टेंस मेजर की तरफ जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वी नीड टू कोऑर्डिनेट और द लोकेशन ऑफ 2 डिफरेंट पॉइंट्स। अब अगर हमें कोई 2 पॉइंट्स को की डिस्टेंस आपस में आइडेंटिफाई करना है तो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमें पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी जगह पर हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस अदर डिस्टेंस मेजर विच कैन बी यूज्ड इन डिजिटल डोमेन। हम मुख्तलिफ किस्म के डिस्टेंस मेजर यूज़ कर सकते हैं। सिटी ब्लॉक कहते हैं उससे, चेस बोर्ड डिस्टेंस, और बहुत सारे और भी तरीके हैं। लेकिन अगर हम कोई बेसिक लेना चाहें तो बेसिक डिफिनीशन हम कैसे ले सकते हैं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पी के साथ,
और एक पॉइंट है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्यों के साथ। तो अगर इनके मैंने डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है आपस में और ये मेरे पास पिक्सल हैं, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ x, y के साथ, और q को रिप्रेजेंट करता हूँ s, t के साथ। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स में हमारे पास क्या होगा, d हमारे पास डिस्टेंस है, p और q का हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, क्या होगा, x माइनस s और स्क्वायर प्लस y माइनस t स्क्वायर और होल लेते हैं हम इसका 1/2। तो ये हमारे पास जो बेसिक मैथमेटिक्स है, हम उसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर इनके दरमियान हमने डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है तो वो डिस्टेंस कैसे हो सकता है, वो हम अगर इनकी लोकेशंस को आपस में माइनस करें और स्क्वायर लें उसका और 1/2 टोटल उसकी पावर लेते हैं, तो हमें ये बेसिक डिस्टेंस उसके पास हमारे पास आ जाएगा। So to see that if d is a distance function or distance metric, then what is the properties that should be followed by this distance function? तो हम ये देख सकते हैं कि इस डिस्टेंस, अगर इस d को हम लेते हैं तो ये d हमारे पास कैसे आगे फंक्शन के तौर पर काम करेगा। हम क्या करते हैं कि हम 3 पिक्सेल्स लेते हैं, p, q और z को। So p can be represented as x, y, q can be s and t, and z can be u and v. So d is a distance measure or valid distance metric. If d represent pq is greater than or equal to 0 for any p and q and any 2 points p and q, dpq must be greater than or equal to 0 and dpq will be 0 only if p is equal to 0. कैसे होगा यहाँ पर कि ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई कि d जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं p और q का, वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सेकेंड dpq इक्वल टू 0 हो सकता है सिर्फ इस सिचुएशन में इफ़ p इज़ इक्वल टू q। अगर तो p और q जो हैं वो आपस में एक जगह पर हैं पॉइंट्स, मतलब वो उनकी लोकेशन डिफरेंट नहीं है, तो फिर हमारे पास 0 आ सकते हैं। वैसे वो हमेशा या ग्रेटर होंगे या इक्वल टू 0 होंगे, और इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास इस शर्त का होना ज़रूरी है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास p और q है, तो इनका जो आपस में डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। वो तभी होगा अगर तो ये आपस में करीब नहीं है। अगर तो दोनों p और q एक जगह पर हैं, तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हैं, तो फिर हमारे पास सिर्फ इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, इफ डिस्टेंस फ्रॉम p टू q इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम q टू p, तो यहाँ पर dpq इज इक्वल टू dqp। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं p और q, तो जो इस साइड से जो डिस्टेंस बनता है, अगर हम इस साइड से जाएंगे तो भी डिस्टेंस सेम ही बनेगा। तो इस वजह से ये हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ की हो गई कि ये 2 पॉइंट्स हमेशा, अगर डिस्टेंस एक साइड से बनेगा दूसरी साइड से भी सेम ही डिस्टेंस बचेगा।
If we take a third point Z, then the distance between P and Z, that is dPZ, must be less than or equal to the distance between the P and Q plus the distance between Q and Z. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 पॉइंट्स लेते हैं P, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है Z, तो इनका आपस में जो डिस्टेंस बन रहा है वो हमेशा इससे तो वो हमेशा हमारे पास P Q और प्लस Q Z को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो बनेगा। तो P Z जो है P से Z तक जो हमारे पास आ रहा है तो वो ये P और Q और Z की कम्बिनेशन से भी हमारे पास ये वाला ऑप्शन प्रूफ हो सकता है। अब हम लेते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। सो इन केस ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस, अ सेट ऑफ पॉइंट Q where dPQ, the distance between P and Q, is less than or equal to the same value R. So the set of all these points are the point connected within a radius R where starts from location P. अब अगर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस को सामने रखें और हम ये कहें कि कोई S जो है वो हमारे पास आ रहा है कि Q जो है वो हमारे पास आएगा dPQ और वो लेस देन और इक्वल टू R होना चाहिए, और पॉइंट्स कनेक्टेड इन द डिस्क ऑफ रेडियस R, जो रेडियस बनेगा उसका, तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के लिए ये वैलिड होगा, प्रूफ होगा। इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझ सकते हैं। हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक P और एक हमारे पास है Q। हम इसके दरमियान जो पाथ हमारे पास आ रहा है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं R के साथ। अब ये R एक्चुअली क्या है, ये एक रेडियस बना रहा है, ठीक है। हम इसको राउंड तो नहीं है लेकिन एनी हाउ आप ये समझ लें कि ये बिल्कुल राउंड है। तो अब ये जो R है और इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये R हमेशा इसके जो डिस्टेंस है इसके इक्विवेलेंट होगा या इससे कम होगा। मतलब ये कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं ये सारे R के इक्वल हो सकते हैं या R से लेस हो सकते हैं। तो R के इक्वल कब होंगे, अगर तो आप पॉइंट बिल्कुल इस Q के इक्विवेलेंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ले रहे हैं पॉइंट, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इससे कहीं और किसी भी जगह पर आप ले रहे हैं तो वो हमेशा R से लेस होंगे, और ये जो डिस्टेंस इनके दरमियान बनेगा तो ये हमेशा R से लेस होगा क्योंकि ये एक रेडियस बन रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल पॉइंट्स यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। आगे अब हम जाते हैं कि बाकी कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो एक तरीका है सिटी ब्लॉक डिस्टेंस। The second distance measure, which is also known as D4 distance or city block distance or Manhattan distance. It's defined as D4 PQ is equal to X minus S absolute value plus Y minus T absolute value. हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये उसकी सिंपल सी इक्वेशन है। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं। पॉइंट्स हैविंग सिटी ब्लॉक डिस्टेंस फ्रॉम P लेस देन और इक्वल टू R फ्रॉम डायमंड सेंटर्ड एट P। हम एक P लेते हैं और उसके डायमंड सेंटर को साथ में ले रहे होते हैं कि इसके दरमियान इसकी जितनी भी डिस्टेंस है वो हमारे पास हमेशा P जो है वो डायमंड R के से लेस होगी हमारे पास, या लेस होगी या उसके इक्वल होगी। अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम लें एक पॉइंट P जो कि क्या है X और
y, और हमारे पास एक है पॉइंट कोई भी क्यों जिसको हम लेते हैं s और t। ठीक है, तो अब हमारे पास डिस्टेंस 4d4 का क्या था फॉर्मूला, हम लेते हैं x माइनस s एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y माइनस t एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इसका x एक्सिस में जो वैल्यू आ रहा है हम वो लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो y एक्सिस में आ रहा है हम वो वाली एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब ये कि ये x एक्सिस जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा और y जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो y की वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेते हैं। तो हम ये डिस्टेंस मेजर करते हैं लेकिन वो x और y डायरेक्शन में उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो अब डायमंड शेप कैसे बनेगा, all the points having a city block distance from point P less than or equal to some value R। हम जो भी पॉइंट लेंगे P से आगे, तो जो स्टार्ट वाले होंगे वो तो डायमंड शेप नहीं बनाएंगे लेकिन उसके बाद सारे डायमंड स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हमेशा क्या होगा, इक्वल टू सम वैल्यू R। वो R से या P के जो रेडियस बनेगा वो हमेशा P से R के इक्वल होगा या उससे लेस होगा, और उसका सेंटर हमेशा P होगा। सो P इज द पॉइंट एट द सेंटर, देन ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिटी ब्लॉक डिस्टेंस दे आर द 4 नाइबर्स ऑफ द पॉइंट P। तो हम P से स्टार्ट करते हैं और उसके 4 नाइबर्स चेक करते जाते हैं। सिमिलरली ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सिटी ब्लॉक डिस्टेंस इज इक्वल टू 2, दे आर सिंपली द पॉइंट्स विच आर एट डिस्टेंस 2। तो अब जो डिस्टेंस 2 पे हैं हम उनको ले लेते हैं साथ में। That is the distance taken in the horizontal direction plus the distance taken in the vertical direction, that become equal to 2, and set of all this point will with city block distance is equal to 2, that simply forms a diamond of radius 2। और जब हम 2 का लेते हैं तो वो सिंपली हमारे पास एक डायमंड शेप बन जाता है और वो डिस्टेंस 2 की बेसिस पे है। एंड सिमिलरली अदर पॉइंट्स एट डिस्टेंस 3 एंड 4, और हम इसी तरह 3 और 4 और आगे फर्दर ऑन चलते जाते हैं। तो ये हमारे पास इस वजह से डायमंड शेप बन रहा है कि हम उसके पहले 4 नाइबर्स लेते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं उसकी x एक्सिस में और y एक्सिस में जो भी उसके नाइबर्स आ रहे हैं तो हम 4 वो वाले नाइबर्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दोबारा लेकर हम उसके फर्दर नाइबर्स चेक करते हैं। तो हम एक्सटेंड करते जाते हैं और जितना हम आगे चलते जाएंगे, क्योंकि 1 के बाद इसका नाइबर ये बनता जा रहा है तो 4 नाइबर्स ये हैं तो ये इनको 2 कर देते हैं। फिर सेम इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे और इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। अब हमारे पास ये जो चेस बोर्ड एक नया मेथड है डिस्टेंस मेजर करने का। In case of city block distance, the distance between 2 points was defined as the sum of distance that you covered along x direction plus distance along the y direction। तो हम सिटी ब्लॉक में क्या करते हैं कि एक्सेस जो है x में और y में उनके जो डिफरेंस है वो हम ले रहे होते हैं। In case of chessboard distance, it is the maximum distances that you can cover along x direction and y direction। और हम चेस बोर्ड में क्या करते हैं, हम जो मैक्सिमम जहाँ तक हम पॉसिबिलिटी हो हम वो सारे वैल्यूज़ ले लेते हैं। किस तरह करते हैं, हम इसमें d8 लेते हैं p and q which is equal to max of x minus s and y minus t। हम क्या करते हैं कि x माइनस एस लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जितने भी हमारे पास डिस्टेंसेस आ रहे हैं वो लेते हैं और y माइनस टी लेते हैं। ठीक है, वेयर वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बोथ x माइनस एस एंड y माइनस एस, और हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। वेयर द सेट ऑफ पॉइंट्स विद द चेस बोर्ड डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू r, और सेम फार्मूला है कि जो r हमारे पास बनेगा रेडियस उसका, तो वो इक्वल टू
और लेस देन आर हो सकता है। इट फॉर्म्स अ स्क्वायर सेंटर्ड एट पॉइंट पी, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर इसके बनते जाएंगे और वो आगे एक्सटेंड होंगे। सो ऑल द पॉइंट्स विद अ चेस बोर्ड डिस्टेंस ऑफ इक्वल टू 1 फ्रॉम पॉइंट पी, दे आर नथिंग बट द 8 नाइबर्स ऑफ पॉइंट पी। तो हम पी के 8 नाइबर्स चेक कर रहे होते हैं कि उसके 8 नाइबर्स कौन से हैं। तो पी के डायगनली जो 4 नाइबर्स बन रहे हैं और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली 4 नाइबर्स बन रहे हैं, तो हम उनको ले रहे होते हैं। तो उनको हमने 1 असाइन कर दिया और सेकंड लेवल पे हम उसको 2 असाइन कर देते हैं और थर्ड लेवल पे हम उसको 4 असाइन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिस्टेंस मेजर। हम डिस्टेंस मेजर्स क्यों ले रहे हैं, मतलब इसकी क्या ज़रूरत है। वी नीड टू गो फॉर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। हमें एक छोटी सी एग्जाम्पल देखनी है जिससे हमें इसकी समझ आ जाएगी। कैसे? अगर तो हमारे पास 2 शेप्स हैं, एक ये वाला शेप है और दूसरा ये वाला शेप है। अगर हमने इनको आपस में मैच करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है, तो अगर विजुअली हम देखें तो इसमें एक डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर एक डॉट है, होल सा बना हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। तो अगर हम इसको रीड करना चाहेंगे और आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो वो डिफ़िकल्टीज़ उसमें आएंगी, मतलब हमारे लिए उसको कंपेयर करने में इश्यूज़ आएंगे। तो अगर हम कोई ऐसे मेथड इस्तेमाल करें जो डिस्टेंस मेजर हो, तो हम उसके थ्रू इसको बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर तो हम उसका स्केलेटन लेते हैं। टू फाइंड द फीचर ऑफ शेप्स वी नीड टू टेक द स्केलेटन ऑफ द शेप्स विच आर शोन इन द फिगर बिलो द शेप्स। हम स्केलेटन लेते हैं। अब ये स्केलेटन हमने लिया तो हमारे पास डिफरेंट लाइंस आ गई हैं और वो आपस में कहीं पर मैच हो रहे हैं। तो ये स्केलेटन इसका है और ये वाला जो स्केलेटन आ रहा है ये हमारे पास इस शेप का है। तो ये स्केलेटन किसी बेसिस पे बना है, आगे हम सीखते हैं कि ये स्केलेटन कैसे बना। लेकिन अगर आप इन शेप्स को आप कंपेयर करना चाहें तो ये बड़ा इजीली होगा। ये जो स्केलेटन हमने लिया हुआ है, बजाय इसके कि हम शेप्स को कंपेयर करें, तो ये स्केलेटन बड़ा इजी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 लाइंस आ रही हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मल्टीपल हैं, आई गेस 10 हैं। तो हम जब इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें बड़ा इजीली पता चल जाएगा कि ये इससे डिफरेंट है। और वो डिफरेंस की वजह ये वाली जगह है, ये पॉइंट आ रहा है, ये जो होल है, और ये स्केलेटन इस वजह से डिफरेंट आया है इसका। अब ये स्केलेटन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बाय कंपेयरिंग द 2 skeletons, द स्केलेटन ऑफ द फर्स्ट शेप देयर आर ओनली 5 लाइन सेगमेंट्स, वेयर फॉर द स्केलेटन ऑफ द सेकंड शेप देयर आर 10 लाइन सेगमेंट्स। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ 5 आ रही हैं और यहाँ पर 10 आ रही हैं। इस वजह से इनका कंपैरिजन अब बहुत ईजी हो गया। सिमिलरली द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स मीट्स the first skeleton there are only 2 such points, where in the second skeleton there are 4 such points. तो अब हमारे पास ऐसी जगह जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 4 आ रही हैं, क्योंकि 1 2 और 3 4 हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी बहुत इजीली हम इसको चेक कर सकते हैं। By compare the skeleton rather than comparing using the original shape, there is a lot of difference that can be found out both in the terms of number of line segment and also in terms of the number of points where more than one segment meets. So what is skeleton? अब क्वेश्चन आता है, आपको ये तो बता दिया कि skeleton के फ़ायदे क्या हैं, लेकिन ये पता नहीं चला अभी तक कि हमने skeleton लिया कैसे और इसका क्या मकसद है। When we remove some of the fragment point in such a way that the shape information as well as the dimension is more or less retained in the skeleton, तो हम अगर तो कुछ चीज़ें रिमूव कर दें और कुछ चीज़ें छोड़ दें जो हमें उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे, और वो अपनी शेप और उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो अगर हमें दे सके, तो हम उसको कहते हैं कि ये उसका स्केलेटन है। नाउ क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी गेट दिस स्केलेटन। अब हमारे पास सवाल आता है कि हम इसको कैसे लेते हैं स्केलेटन को। Assume that the foreground region in the
input binary image is made of some uniform slow burning material. अब आप ये इज्यूम करें कि जो हम यहाँ पर इमेज ले रहे हैं और ये जिस मटेरियल से बना है, हम इज्यूम करते हैं कि वो ऐसा मटेरियल है जिसको हम अगर आग का शोला दे दें तो वो उसको बर्न करना शुरू कर देता है। और आग का शोले का बर्न करने का मतलब ये है कि वो एक साइड से बर्न होना शुरू हो जाता है और आगे चलता जाता है। What if we light fire at all the point across the boundary of this region, that is the foreground region. अब अगर हम सब साइडों से आग लगा लें, जो इसके बाहर वाले बाउंड्रीज हैं यहाँ से हम स्टार्ट करें और इसको फायर लगा लें। अब हमने ये ज्यूम तो कर लिया कि ये एक ऐसा मटीरियल जिसको आग लग सकती है, तो अगर हम इसको आग लगाएंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन से भी फायर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन से भी जा रहा होगा, इधर से भी जा रहा होगा और इधर से भी जा रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्शन से हमारे पास फायर जा रही होगी। ठीक है, the fire then as the fire line goes in, there will be some point in the foreground region where the fire coming from two different boundaries will meet at the point the fire will extinguish itself. अब हमारे पास जब भी फायर चारों तरफ से आएगा तो कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर वो फायर आपस में मिल रहे होंगे। मतलब ये कि जब यहाँ से भी आग आ रही होगी, यहाँ से भी जा रही होगी, तो कुछ एरियाज होंगे जहाँ पर ये क्योंकि कंटिन्यूसली इधर से आ रहा है और ये भी इस तरह से आ रहा है, तो ये आपस में कुछ जगहों पर मैच कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब वो मिल रहे होंगे। द सेट ऑफ दिस पॉइंट इज व्हाट इज कॉल्ड quench lines, and the skeleton of the region is nothing but the quench lines that we obtain by using this fire propagation concept. अब जो हमारे पास ये लाइन जहाँ पर आग की लाइनें मिल रही हैं, तो हम इस जगह को कहते हैं क्वेंच लाइन, और असल में ये क्वेंच लाइन ही हमारे पास स्केलेटन होता है। The set of all these points are called the quench line. The skeleton of the region is the quench line obtained by using fire propagation concept. तो अब डिफिनीशन क्या हो गई कि स्केलेटन वो होता है कि जो हम क्वेंच लाइंस की इंफॉर्मेशन एक सेट में रख लें और अपने पास, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास स्केलेटन आ गया, और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं मेडियल एक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसको कहते हैं। अब किस तरह होता है ये, अगर आप इस इमेज में देखें, अगर हम इसको 4 डायरेक्शन से फायर ऑन कर दें इसके ऊपर, तो क्या होगा, तो ये हमारे पास आगे चलता जाएगा और एक जगह होंगी जहाँ पर ये मीट हो रहा होगा। ठीक है, सेम इसी तरह अब ये जो डार्क से लाइट की तरफ हम जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये वो स्केलेटन है जो हम बात कर रहे थे कि ये कैसे जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ पर 5 लाइन्स कैसे आ गए और यहाँ पर मल्टीपल कैसे आ गए। Simple description of movement of the fire line does not give you any idea of how the computer skeleton of the particular shape is obtained. So हम अगर आपको सिर्फ बातों से बताएं तो जाहिर है ये नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकली उसको प्रूफ करेंगे तो तब पॉसिबल होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन। सो फॉर दैट वी हैव यूज द डिस्टेंस मेजर। अब इसके लिए हम डिस्टेंस मेजर यूज़ कर सकते हैं। जो हम डिस्टेंस मेजर्स देख रहे थे तो उनमें से कोई एक हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन वी लाइट द फायर अक्रॉस ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स simultaneously and the fire is moving inside the foreground region slowly, we can note at every point the time the fire takes to reach the particular point. So it is a distance transformation of the image. अब हम जब फायर लगाते हैं सारे डायरेक्शन से, तो हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं उसमें P, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ तक अगर आग पहुँचेगी तो किस साइड से पहले पहुँचेगी, और दूसरी बात ये कि वो कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ये मीट कर रहे होंगे। तो इसके लिए हमें उस डिस्टेंस मेजर की ज़रूरत है, हमें डिस्टेंस मेजर करना होगा। डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली यूज्ड टू for a binary image, and we calculate the time value for every point the fire takes to reach that particular point. So by applying distance transformation we get an image or shape of the image in a gray level image. अब हम क्या करते हैं कि नॉर्मली तो हम
बाइनरी इमेज लेते हैं, तो बाइनरी इमेज के ऊपर जब हम ये अप्लाई करते हैं तो हम क्योंकि डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम उसको पॉइंट्स असाइन करते जाते हैं, उसको वैल्यूज़ देते जाते हैं. Where the gray level intensity of the point in the inside of foreground region had changed to show the distance of that point from the closest boundary point. अब जब हम स्टार्ट करते हैं एक बाउंड्री से, तो हम उसको लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करते हैं और हम उसको एक्सटेंड करते जाते हैं. मतलब वो हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और जैसे ही वो आगे चलता जाएगा, प्रोपगेट करेगा, तो हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, 1 की तरफ लेकर जाएंगे. तो जब हम 1 की तरफ लेकर जाएंगे तो जाहिर है वो पॉइंट्स में वो जो चेंजेस आ रही हैं वो जब रिप्रेजेंट होंगी तो वो हमारे पास कुछ ग्रे लेवल रिप्रेजेंट करेगा. मतलब डायरेक्ट वाइट नहीं होगा, वो स्लोली प्रोपगेट होता जा रहा है. इस वजह से हमारे पास ये जो आएगा इमेज, जो फाइनल आउटपुट आती है वो एज अ ग्रे इमेज आएगा. ठीक है. सो हियर वी हैव अ बाइनरी इमेज वेयर द फोरग्राउंड रीजन is a rectangular region, and if I take the distance transformation image in the right, all the boundary points they are greater a distance value equal to 1. हम क्या करते हैं कि बाउंड्री से अगर हमने स्टार्ट किया, ये हमारे पास उसकी बाउंड्री आ गई, ये वाली बाउंड्री है. ठीक है. हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ से स्टार्ट किया तो जो पहली वैल्यू है हमने उसको 1 दे दिया. Then the point inside the boundary point they get a distance value equal to 2. अब इसके बाद जब हम दूसरे लेवल पे जाएंगे, दूसरे स्टेप पे, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में जब हम इसको प्रोपिगेट करेंगे तो हम उसको सेकंड वैल्यू दे देते हैं. अब हम ये डिस्टेंस मेजर्स के थ्रू कर रहे हैं. Then the point inside the boundary position they get distance value 2, and the point further inside they get the distance value 3. The intensity value that we are assigning to different point within the foreground region, the intensity value across increases slowly from the boundary to the interior points. A gray level image which you get after performing the distance transformation. तो हम at the end हम एक gray level image ले लेते हैं. By analyzing this distance transform image, you find that there are few points at which there is some disconnectivity of the curvature. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसकी डिस्कनेक्टिविटी है कर्वेचर की, तो हम वो वाले पॉइंट्स ले लेते हैं. सो बाय आइडेंटिफाइंग द पॉइंट्स ऑफ discontinuity of curvature, these are actually the point which lies on the skeleton of this particular shape. तो हम अगर वो वाले points ले लें तो हम उनको as a skeleton represent करते हैं. So original image हमारे पास आ रहा है एक साइड पे, और फिर उसके बाद हमारे पास मिडल कॉलम में डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसकी, और जो राइट पे है बिल्कुल हम वो उसका स्केलेटन ले रहे हैं. बाय कोरिलेटिंग द राइट मोस्ट कॉलम विद द मिडल कॉलम इज द स्केलेटन इन द राइट मोस्ट कॉलम कैन नाउ बी इजीली ऑब्टेन फ्रॉम द मिडल कॉलम. तो हम इसको अगर लें तो इसकी बेसिस पे हम ये वाला बड़ा इजीली बना सकते हैं. ठीक है. और ये हमारे पास कुछ और शेप्स हैं जिनका अगर हम स्केलेटन लेते हैं या शेप की प्रॉपर्टीज लेना चाहें तो वो इस तरह लेते हैं. वी कैन यूज दिस मेथड when there is the need for shape matching or discrimination problems. So instead of processing on the original shape, we compare the shape using skeleton. Distance measure क्या हुआ? There are different type of distance measure or distance metric like Euclidean distance metric, city block distance metric और chessboard distance metric. There will be different transformation. तो अब अगर हमारे पास different distance के measures हैं, different तरीके हैं, तो हमारे पास transformation के भी different तरीके होंगे. There are also multiple skeleton algorithm. All the skeleton we get using different distance metric, they will be different, but the effect will be more or less the similar. अब क्योंकि हम डिफरेंट किस्म के स्केलेटन्स ले सकते हैं जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो स्केलेटन
हाँ, हमें इंफॉर्मेशन तो डिफरेंट दे रही होगी, लेकिन रिजल्ट्स अगर हम उसकी बेसिस पे लेते हैं तो वो मोर लेस सिमिलर ही होंगे। मतलब हमने ज़ाहिर डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है, तो वो डिफरेंस इजीली हमारे पास डिफरेंट आ रहा होगा, वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकेगा। द स्केलेटन इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड compact representation of shapes perceive many of the technological and size characteristics of the original shape. So what is the use of skeleton? We can have the length of the shape because by getting the different end point of the skeleton and the distance between every pair of end point in the skeleton, then the maximum of all these pairwise distance will give the length of the shape. The skeleton gives us the ability of qualitatively and quantitatively difference between different shapes, क्योंकि हमें वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब हम अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हैं? अगर तो हम इमेज की बात कर रहे हैं, तो इमेज में हमारे पास कोई पिक्सल्स हो सकते हैं, तो उन पिक्सल्स की कोई लोकेशन होगी और उन लोकेशंस को हम पी और क्यू से रिप्रेजेंट करें, तो हम उसके ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम एडिशन का कर सकते हैं, हम कोई सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं पिक्सल्स की आपस में, और हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लॉजिकल एंड ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, और पी प्राइम ले सकते हैं हम अपने पिक्सल्स की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अगर ए हमारे पास एक इमेज है और उसमें हमारे पास उसके कुछ वैल्यूज़ बाइनरी में है 1 और 0 की सिचुएशन में, तो अगर हम ए नॉट ले रहे हैं तो नॉट कैसे होगा? जो एरिया हमारे पास 1 है हमने उसको 0 कर दिया और जो 0 है उनको 1 कर दिया। अब अगर हम एक्स और लेना चाह रहे हैं या एंड लेना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? अगर ये हमारे पास ए है और हमारे पास ये बी इमेज है, तो इन दोनों को अगर हमने एंड करना हो तो एंड की सिचुएशन में हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी? तो हम सिर्फ वो वाला पोर्शन लेते हैं जो आपस में मैच कर रहा है, तो हम वो उसको एंड इस तरह करते हैं। और अगर हमने उसका एक्स और लेना हो, तो हम वो कैसे ले सकते हैं कि हम दोनों का वो वाला एरिया जो आपस में मैच हो रहा है, तो हम वो रिमूव कर दें और बाकी सारा शो करा दें, तो हम वो एक्स और के तौर पर ले सकते हैं। और सेम इसी तरह हमारे पास पिक्सल नाइबरहुड की डिफरेंट ऑपरेशंस आ रहे हैं कि हम नाइबरहुड की सिचुएशन में पिक्सल्स के साथ कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो हम अगर 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं Z1 से लेकर Z9 तक, तो अब अगर हमने एवरेज लेना हो और हम ये करें कि हर एक पॉइंट के ऊपर वो एवरेज की वैल्यू ले आए, या अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर सब की एवरेज की वैल्यू ले आए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो z इज इक्वल टू 1/9 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अंटिल zn। तो हम यहाँ तक सबको ऐड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/9 के साथ, तो ये हमारे पास उसका एवरेज आएगा। ठीक है, सो ये क्योंकि उसके नाइबर्स की इंफॉर्मेशन है, तो नाइबर्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है किसी एक पॉइंट के ऊपर। अब हम इसके लिए कोई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अब टेम्पलेट का क्या फ़ायदा है? टेम्पलेट का ये फ़ायदा हो सकता है कि हम ओरिजिनल इमेज को चेंज नहीं करते, हम वो टेम्पलेट लेते हैं और टेम्पलेट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, और वो वाली टेम्पलेट की वैल्यू हम उस स्पेसिफिक लोकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं। कैसे होगा? वी डिफाइन 3x3 टेम्पलेट विच इज़ शोन ऑन द राइट साइड हैंड, मतलब ये जो हमारे पास आ रहा है हम इसको टेम्पलेट लेते हैं। कंटेन्स 9 एलिमेंट W1 to Wn। To perform the neighborhood operation, we put the template on the original image in such a way that the pixel at which place we want to replace the value, the center of template just relates with that pixel। अब हमने किसी एक जगह पर चेंजेस करनी है, तो हम ये टेम्पलेट लाते हैं और ये जो सेंटर है ये उस पॉइंट के ऊपर रखते हैं जहां हमने चेंजेस करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है और इस इमेज में यहाँ पर वो मेरा जो आ रहा है वैल्यूज़
मैं चाह रहा हूँ कि इस फर्स्ट लोकेशन को मैं चेंज करूँ, ठीक है। तो इस फर्स्ट लोकेशन को चेंज करूँगा तो मेरा जो टेम्पलेट आएगा वो किस तरह आएगा। अब वो इस तरह आ जाएगा, उसके ऊपर टेम्पलेट हमारा ये आएगा कि जो सेंटर की वैल्यू होगी हम उसको बिल्कुल उस लोकेशन के ऊपर ले आएंगे जहाँ पर हमने उसको चेंज करना है। तो बाकी जो है ये अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि हम इस टेम्पलेट को आगे मूव कराते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पहले मैंने इस वैल्यू को चेंज की। ज़ाहिर है इस इमेज में यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम इसको 0 और 1 की फॉर्म में लेते हैं तो वो कुछ असर भी नहीं करेंगे। तो अब हमने इसको नेक्स्ट लेकर आए तो इस पॉइंट पे आ गए, ये सेंटर में आ जाएगा, पर ये वाला सेंटर में आ जाएगा। फिर हम इसको नीचे ले आते हैं तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला, और सेम इसी तरह। और अगर तो ये इमेज आगे कंटिन्यू कर रहा है, अगर हमारे पास ये इमेज आगे भी है इस तरह, तो हम इसको आगे लेकर जाएंगे और हर एक पोजीशन पे इसको आगे मूव कराते जाएंगे। तो ये हमारे पास टेम्पलेट का ये काम होता है, क्योंकि ये वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस जो हैं वो हमारे पास अलग आ रही होती है, तो हम ओरिजिनल को चेंज नहीं कर रहे होते और वो वैल्यूज़ हम मेंटेन रख सकते हैं। तो ये इसको आगे हम काफ़ी यूज़ करेंगे टेम्पलेट को, तो इस वजह से इसकी समझ आपको होनी चाहिए कि ये टेम्पलेट का क्या फ़ायदा है और हम इसको कैसे मूव कराते हैं। हम इसको इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। और ये टेम्पलेट जो है ये ज़रूरी नहीं है कि ये 3x3 हो, ये हमारे पास 8x8 भी हो सकता है और 9x9 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके जितना कितने नाइबर्स की इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं, तो वो उस पर टोटली डिपेंड कर रहा होता है। सो द टेम्पलेट ऑपरेशन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एज डिटेक्शन ऑपरेशन इन डिफरेंट इमेजेस। हम एजेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और हम और बहुत सारे फिल्टरिंग लगाते हैं उस फिल्टर्स के लिए, या हम नॉइज़ रिमूव करना चाह रहे हैं उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। So we will conclude today's lecture, and we will study what we have done until now. So what we did today, we studied different distance measure, how to measure distances between 2 points, and then we also learn what is the use of distance measure. So हमने ये देखा कि अगर हम skeleton की information लेना चाहते हैं तो वो skeleton के लिए हमें distance measure चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि हम बाउंड्री से कितना डीप जा रहे हैं। तो वो डिस्टेंस को हम मेज़र करते जाएंगे और जैसे ही डिस्टेंस मेज़र होगा तो उसको हम डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करते जाते हैं ग्रे लेवल। तो जब हम वो वैल्यूज़ असाइन करेंगे तो हमें ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर वो वैल्यूज़ आपस में मैच कर रही होंगी, तो हम वो वाले पॉइंट्स ले लेते हैं और उन पॉइंट्स को कंबाइन करके एक स्केलेटन बना लेते हैं। तो ये हमारे पास उसके यूज़ आ गया। और फिर हमने ये देखा कि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस कौन से हैं जो हम पिक्सेल्स के साथ कर सकते हैं। मतलब हम दो पिक्सेल्स को ऐड कर सकते हैं। हम ऐड करने का क्या मतलब है, हम उसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उसके लॉजिकल ऑपरेशंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम और लेना चाहें या हम उसको एंड करना चाहें किसी दो पिक्सेल्स या इमेजेस को, तो इसका क्या मतलब है। और उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि नाइबरहुड ऑपरेशंस क्या हैं। अगर तो हम किसी एक पॉइंट पर हैं और उस पॉइंट की नाइबर की इंफॉर्मेशन हम यूटिलाइज़ करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे। तो हम 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं। हम एक पॉइंट जो P जो मिड में होता है और उसके जितने भी नाइबर्स हैं 8 नाइबर्स, हम वो लेकर उसकी कोई भी वैल्यू अगर हम वहाँ पर असाइन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एवरेज ले लिया सबका और हम वो लोकेशन P पे असाइन करना चाह रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा
कि अगर हम टेम्पलेट लेते हैं तो उस टेम्पलेट का ज़्यादा फ़ायदा इस वजह से है कि हम ओरिजिनल इमेज को नहीं छिल रहे और हम वो टेम्पलेट के ज़रिए वैल्यूज़ ले रहे हैं और उस वैल्यूज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं जो सेंटर में आ रहा है टेम्पलेट के उस पिक्सल के ऊपर। तो हमने हमेशा अपने टेम्पलेट को मूव कराना है और उस पिक्सल पे लाना है जिस पिक्सल को हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस पिक्सल को हमेशा हम सेंटर पे रखेंगे और बाकी सारों की वैल्यूज़ हम वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सिंपल टेम्पलेट है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे मल्टीपल अदर पर्पसेस के लिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।